ऊपर 3 वर्ल्ड रिनाउंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये कहती हैं जी कि नेफल्ड स्क्रीनिंग रिकमेंडेड इन पर्संस एट हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इंक्लूडिंग टाइप 2 डायबिटीज, मेलाइटिस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो इनके अंदर आपने हमेशा सस्पेक्ट करना है। यूरोपियन एसोसिएशन फॉर स्टडी फॉर द लिवर, यूरोपियन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज एंड वन मोर अदर। ये 3 जो है ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड रिनाउंड, ये आपको बता रही हैं कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन नेफल्डी एंड द अदर क्रॉनिक मेटाबॉलिक इलनेसेस। वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस की बात करें, 45% ऑफ द अमेरिकन आर नाउ लिविंग विद fatty liver disease. 25% of the American kids are living with fatty liver disease, and it has been doubled over the last 20 years. पिछले 20 सालों में ये तादाद डबल हुई है। इससे 20 साल पहले only 12% or so of the American kids were living with fatty liver disease, and this is all because of the standard American diet. And one must be very much clear about that the standard American diet is not confined to USA only. It is now global. 25% of the world population, अगर दुनिया की बात करें तो हर 4 में से एक बंदा who is walking on the surface of this earth is living with fatty liver disease. ठीक है जी, 25%। अब पाकिस्तान के बारे में लोग जानना चाहते हैं, इस पे डेट देखिए कि ये कितने लेटेस्ट है। सबसे आखिरी लाइन में कब पब्लिश हुआ? आज कितनी है? परसों है। ठीक है जी। तो ये ऊपर लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने रिसर्च की है मुख्तलिफ तरीके से। और पाकिस्तान की प्रेवलेंस है जनरल पॉपुलेशन 29.82% एंड इन पेशेंट विद डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी 58.47%. So that what has been endorsed in the previous slides, that non-alcoholic fatty liver disease is associated with metabolic disorders. More the number of metabolic disorders, more are the chances of getting non-alcoholic fatty liver disease, progressing to NASH, to fibrosis, and then ultimately to liver cirrhosis. ठीक है जी? And this is a staggering number of patients, 58.47. Keeping the fact in view that in Pakistan, 1 in every 4 person is diabetic. And if we are 20 crores, for example, then 5 crores are living with diabetes. And according to the Buckeye or university's statistics, if there are 5 crores patients living with type 2 diabetes, 5 crores are behind, which have not been diagnosed. So if we include those persons in that pool, that means literally half of the population of Pakistan is diabetic. And so is the case with, और शुरू में हमने ये बात आपको याद है बहुत पहले तय कर ली थी कि लिवर इज द ग्राउंड जीरो फॉर द क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीजेस। इनका आगाज ही जिगर से होता है, लिवर से। आसिफ साहब इधर ही रहे मेरे पास, ये नहीं चल रहा। अब ये आगे कैसे जानेंगे? Now, moving on to the non-alcoholic fatty liver disease, let's give a brief sort of repetition to the insulin resistance, because this is all game of insulin resistance. So, if you recall, I have given you a brief overview of insulin resistance, that it is always a two-part problem. One is the conventional insulin resistance along with hyperinsulinemia. These are two inseparable pathways which lead to the insulin resistance. One part cannot exist without the other. So these are the sides of the same coin. Insulin resistance, which means some cells of the body become insulin resistant. They don't respond to the insulin in the way they usually were prone to. And at the same time,
when they become insulin resistance, pancreas outputs more and more insulin to counteract that insulin resistance, and it leads to hyperinsulinemia. So majority of your metabolic disorders are the result of this part of your insulin resistance, because more and more insulin. And what is the basic function of insulin? That is just to store the things. It stores. अभी से ये बात अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि आगे सारी जो प्रेजेंटेशन है वो इसी पे डिपेंड करती है. ठीक है जी. Liver insulin is a storage kind of hormone. It stores everything, every nutrient which is surplus in the body, which is not used by the cell, that is being stored under the influence of insulin. So insulin has got such an authoritative power that it dictates to the macronutrients which way they are going to be. Okay. Why liver gets fatty? अब लिवर में फैट आती कहां से है? ठीक है जी. लेट मी जस्ट मेक अ बोल्ड स्टेटमेंट, एंड दिस इज अ डेक्लरेटिव स्टेटमेंट राइट एट द आउटसेट, दैट द बॉडी एंड द लिवर कैन नॉट स्टोर फैट अनलेस इंसुलिन इज एलिवेटेड. कोई बंदा मोटा नहीं हो सकता जब तक उसकी इंसुलिन हाई है, और कोई बॉडी का सेल स्टोर नहीं कर सकता किसी भी चीज को, इंक्लूडिंग फैट इंक्लूडेड, किसी चीज को स्टोर नहीं करता जब तक इंसुलिन एलिवेटेड नहीं होगी. So for the storage, elevation of insulin is the primary and the foremost process in the pathways. Similarly, it becomes even more difficult for the liver to keep fat in itself as insulin is coming down. और जैसे ही इंसुलिन नीचे आती है तो लिवर के लिए ये मुमकिन नहीं है कि आप उस फैट को होल्ड कर ले. Insulin high, fat is stored in the liver and kept over there. वो उसको लिवर से बाहर नहीं आने देगी. और जैसे ही इंसुलिन नीचे आनी शुरू होगी, अब लिवर के लिए उस फैट को होल्ड करना मुमकिन नहीं होगा. Got my point? So, sum it up. Insulin is a necessary stimulus to either put fat there in the first place or keep it there to prevent it from breakdown. ये ना सिर्फ वहां पे उसको एक्यूमुलेट करेगी बल्कि वहीं ही रखेगी जब तक ये हाई है. ये फैट को निकलने नहीं देगी. तो फिर अगर फैट को लिवर से निकालना है तो क्या करना है? इंसुलिन को नीचे आना चाहिए. ठीक हो गया जी. नाउ सोर्सेज ऑफ लिवर फैट. अब फैट आ कहां से रही है? लिवर फैटी होता कहां से? देयर आर बेसिकली टू सोर्सेज. फैट लीकिंग फ्रॉम एडिपोज टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ फ्री फैटी एसिड्स ब्रोकन डाउन थ्रू लाइपोलिसिस. आपके जो फ्री फैटी एसिड्स हैं जो कि आपके फैट टिश्यू से आते हैं, वहां पर लाइपोलिसिस होता है, तो वहां से फ्री फैटी एसिड दे आर लीक एंड दे आर रेडिली पुल्ड अप बाय द लिवर टू स्टोर. And the contribution is 60%. 60% फैट आपके लिवर में आपके एडिपोज टिश्यू से आती है. लिवर मेकिंग इट्स ओन फैट बाय डिनोवो लाइपोजेनेसिस. 30% फ्रॉम द न्यू फैट फॉर्मेशन. एक तो बाहर से आ गई 60%. 30% लिवर खुद बनाता है. वो कैसे बनाता है? वी विल डिस्कस इन अ शॉर्ट वाइल. ठीक है. तो 30% लिवर, तो कितना हो गया? 90%. पीछे कितना बचा? ओनली 10% इज ड्राइव्ड इन द लिवर फ्रॉम द डाइटरी. अब आपको समझ आइए, जो हम शुरू से कहते हैं कि मक्खन, घी और फैट खाने से फैटी लिवर नहीं होता. ओनली 10% कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दैट 10% इज वेरी वेल हैंडल्ड बाय द लिवर. और ये कैसे आते हैं? जब आप खाना खाते हैं आपके गट के अंदर जाता है, दैट इज पैकेज्ड इनटू काइलोमाइक्रॉन्स दैट सर्कुलेट्स थ्रू योर लिम्फेटिक सिस्टम, goes to the liver by the liver. जब तक ये लिवर तक पहुंचता है, वो काइलोमाइक्रोन, जो इतने बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो होते होते छोटे छोटे काइलोमाइक्रॉन्स रेमिनेंट्स रह जाते हैं. अब अगला जो मेरा होगा लेक्चर वो लिपिड मेटाबॉलिज्म पे होगा, जिस हम इसको हमेशा के लिए सेटल कर देंगे. आपसे कोई भी बड़े से बड़ा बंदा ये कहे, कोई कार्डियोलॉजिस्ट आपसे ये कहे कि जी डाइटरी फैट जो है उसके साथ आर्टरीज क्लॉग होती हैं, यू कैन टेल हिम और हर दैट यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. मेरा दोस्त न्यूयॉर्क में है और उसको
कल रात की बात है, तो मेरा दोस्त है वो वहां पे, उसको प्रॉब्लम हुई, सस्पेक्टेड हार्ट डिजीज, मस्कुलर पेन थी, सस्पेक्टेड हार्ट डिजीज। वहां पे न्यूयॉर्क के अंदर एक इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट है, ये मैं मजे की आपको बात बताने लगा हूं। उसने उसकी सीटी एंजियो भी कर दी, उसका टेस्ट भी कर दिया, तमाम उसके पैरामीटर्स नॉर्मल थे, एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वाज स्लाइटली हाई, अबाउट 130 मिलीग्राम पर डी। अब वो कार्डियोलॉजिस्ट साहब उसको फरमाने लगे कि मैंने तुम्हें स्टैटिन पे डालना है, और वो मेरे से चले, मुझसे पूछे बगैर नहीं चलता। उसने मुझे 3 दिन पहले कहा कि मेरा कार्डियोलॉजिस्ट मुझे स्टैटिन पे डालना चाहता है। मैंने कहा नो स्टैटिन एट ऑल, एंड आई मीन इट। रात उसका मुझे फोन आया, कहता मुझे, मेरे पास तुम्हारा मैसेज पड़ा था, मेरा कार्डियोलॉजिस्ट कहने लगा भाई तुम स्टैटिन शुरू करो, 40 मिलीग्राम अटोरवास्टैटिन। तो कहता मैंने उसको कहा मेरा भाई डॉक्टर है तो मैंने नहीं करनी। तो कहता वो गर्मी खा के, हम यहाँ कहते हैं ना जी लोग गर्मी खाते हैं, कहता जी वो गोरा गर्मी खा गया, कहता फिर अपने भाई से इलाज कराओ जाके पाकिस्तान, यहाँ क्या कर रहे हो। कहता फिर वो थोड़ा कूल डाउन हुआ तो मुझे कहने लगा, कहता कि मुझे वजह बताओ कि तुम स्टैटिन क्यों नहीं लेना चाह रहे। उसने कहा जी मेरे भाई ने कहा कि ये ठीक नहीं होती। उसने कहा वुड यू लाइक टू मेक अ फोन कॉल टू योर ब्रदर, आई वांट टू टॉक टू हिम। और मेरी कल रात उस कार्डियोलॉजिस्ट से 15 मिनट की गुफ्तगू हुई, कल रात की बात बता रहा हूँ। और मैंने जब उसको बताया, मैंने कहा जी मुझे सिर्फ आप ये बता दें, चूंकि वो इंडियन था तो उर्दू भी समझ लेता था, तो मैंने उसको कहा मुझे सिर्फ आप ये सर बता दें कि कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि स्टैटिन आर यूज फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन, इज नॉट अ हार्ट पेशेंट। मैं कहा आप उसको स्टैटिन देना चाह रहे हैं, ठीक है जी, उसका कोलेस्ट्रॉल नीचे लाना चाह रहे हैं, 130 इज वेरी फाइन, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा आपको पता है ये प्री डायबिटिक है, और जब आप स्टैटिन देंगे तो वी मस्ट बी रेडी फॉर द टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है जी। उसके अलावा यंग पर्सन है, आप उसको इनफर्टिलिटी की तरफ भी लेके जाएंगे, डिक्रीज ऑफ लिबिडो की तरफ भी लेके जाएंगे, उसके हार्मोन्स जो है वो नीचे। जब मैं उसको बताया तो ही वाज अ बिट रिसेप्टिव। कहता है एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जो गाइडलाइंस जो हमारी है ना तो हम उनको फॉलो करते हैं। मैं कहा जी आप गाइडलाइन फॉलो करते हैं तो मैं आपको 3 किताबें बता रहा हूँ, आपके मुसन्निफीन है जो वहां पे हैं अमेरिका में, आप इसको पढ़ लें और ये इसका रेफरेंस है। और मैंने कहा जी कि आपके कार्डियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि नहीं देना चाहिए। सो मैंने कहा कम आउट ऑफ योर इंटरनेशनल स्टूपिड गाइडलाइंस विच आर बीइंग फंडेड बाय द फार्मा इंडस्ट्री, ये सिर्फ अपनी दवाइयों बेचने के चक्कर है। सो उसको बात मेरी समझ आ गई। उसने कहा नाउ आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम टॉकिंग टू अ लिटरेट डॉक्टर, ये उसके आखिरी अल्फाज थे मेरे लिए। तो 10% सिर्फ आती है, और लिवर उस 10% को बड़ा एफिशिएंटली हैंडल कर लेता है, वो किसी तरह से भी आपकी आर्टरीज क्लॉग नहीं करती। तो ये 2 मेन सोर्सेज हैं। ये तो वो मेन सोर्सेज हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपके इंसुलिन के ऊपर, ठीक है ना जी। इंसुलिन हाई है तो स्टोरेज हो जाएगी, इंसुलिन लो है तो स्टोर नहीं होगी। डिनोवो लाइपोजेनेसिस क्यों होता है वो भी हम देख लेते हैं। और तीसरा एक तरीका है फ्रुक्टोज का। आप जब व्हाइट शुगर लेते हैं, ग्लूकोज इज बीइंग यूज्ड बाय एवरी सेल ऑफ द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है जी। जब आप चीनी का 2 चम्मच डाल के चाय में लेते हैं तो जो व्हाइट शुगर आपकी बॉडी में जाती है उसमें 50% फ्रुक्टोज है, 50% ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज लिवर के अंदर जाता है तो सबसे पहले उस ग्लूकोज को लिवर ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करता है, विच इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। एंड इट इज अबाउट 100 ग्राम्स। जब ये 100 ग्राम्स आपके लिवर में स्टोर हो जाते हैं तो जो बाकी के बचता है ग्लूकोज, दैट इज कन्वर्टेड इनटू फैट। लेकिन फ्रुक्टोज ग्लाइकोजन स्टोर में नहीं जाती, और फ्रुक्टोज बॉडी के किसी और सेल में इस्तेमाल भी नहीं होती फ्रॉम हेड टू टो, बिकॉज GLUT5 का जो रिसेप्टर है दैट इज ओनली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिवर, ये मैं बारहा बता चुका हूं। तो फ्रुक्टोज डायरेक्टली आपके लिवर के अंदर चली जाती है। जब डायरेक्टली चली जाती है तो फ्रुक्टोज इज नेवर कन्वर्टेड, उसका थोड़ा सा पोर्शन भी ग्लाइकोजन में स्टोर नहीं होता। ग्लाइकोजन स्टोरेज इज गुड, ग्लाइकोजन स्टोरेज इज गुड, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन के अंदर उसको स्टोर कर लेगी अबाउट 100 ग्राम, विच इज गुड इनफ फॉर अ डे। एक दिन के लिए वो काफी है। आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो ग्लाइकोजन के सहारे पे आप
बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद एक दिन के बाद फिर आपके फैट स्टोरेज, अगर आपको नहीं मिल रहा कुछ खाने को, तो फैट स्टोरेज आपके काम आएंगे, जो कि दिनों और हफ्तों चलते रहते हैं। इसलिए जल्जले में दबे हुए लोग 3-3 हफ्ते बाद, 1.5-1.5 महीने बाद जिंदा सालम निकल आते हैं, क्योंकि जब उनका ग्लाइकोजन स्टोरेज डिप्लीट हो जाते हैं तो फिर उनकी जो फैट है वो उनको खुराक बहम पहुंचाती रहती है और वो जिंदा रहते हैं। गॉट माई पॉइंट? ठीक हो गया। तो जो फ्रुक्टोज है उसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है दैट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू लिवर फैट। अब मुझे ये बताइए कि सुबह उठ के फ्रूट जूस का ग्लास पीना लिवर के लिए कैसा है, और जॉन्डिस में गन्ने की रॉ पीना कैसी है आपके लिवर के लिए? डज इट मेक एनी सेंस? लिवर इज ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड and you are putting extra burden in the form of raw of ganna, sugarcane juice, which is all fructose. अब मुझे ये बताइए, जो लिवर पहले इन्फ्लेम्ड है, यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ फ्रुक्टोज, वो हैंडल कर लेगा इसे? तो गन्ने की रॉ पीने से जिगर खराब होगा या बेहतर होगा? आंसर सिंपल। वो खवातीन जो सुबह सुबह उठ के 2 स्लाइस डबल रोटी के जैम लगा के और साथ फ्रेश ऑरेंज और पाइनएप्पल जूस पीती हैं, उनका मैंने बताया था दे एज अर्ली, बिकॉज उनके अंदर ग्लाइकेशन का प्रोसेस, रोस्टिंग ऑफ द मीट, जैसे ग्रिल के ऊपर शवारमे वाले ने वो चिकन लगाया हुआ ना, आप ऐसे अपने आप को रोस्ट कर रही हैं, दैट लीड्स टू wrinkles on the skin, cataracts in the eyes, and you age earlier. So fresh juice जो है, that is a name of poison. अब ये जो चीजें हैं जब हम किसी फोरम पे खड़े होके करते हैं, अब लोगों को चूंकि पता नहीं है, दे कॉन्ट्राडिक्ट। हम तो साइंस बयान कर रहे हैं, हमसे डिबेट कर लें, हम उनको एविडेंस दे देते हैं, हमारी यहाँ स्लाइड के नीचे एविडेंस लिखा हुआ है, और ये एवरीथिंग इज एविडेंस बेस्ड। ये मेरे अपने फार्मूले तो बनाए हुए हैं ही। ठीक हो गया जी। लिवर फैट के सोर्सेज पता लग गए कहां से आते हैं। तो सबसे पहले हम फैट सेल की बात कर लेते हैं। लाइपोलिसिस से आता है और डिनोवो लाइपोजेनेसिस से। तो सबसे पहले हम फैट सेल की बात कर लेते हैं। अगर एक बंदा इंसुलिन सेंसिटिव है, कीप इन माइंड, दोबारा आपको याद करा रहा हूं कि जब तक इंसुलिन हाई है, हाई इंसुलिन वोंट लेट द फैट कम आउट ऑफ द फैट सेल और द लिवर सेल। जब तक वो हाई है वो लाइपोलिसिस नहीं होने देगी, उसका काम है स्टोर करके रखना जब तक हाई है। जब लो हो जाएगी तो तब सारा काम होना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फेड स्टेट के अंदर क्या होता है जब हमने खाया पिया हुआ है। फेड स्टेट है, आप खा रहे हैं सारा दिन, खाया पिया हुआ है, तो ऑब्वियसली जब आपने खाना खाया है तो इंसुलिन हाई होगी या लो होगी? इंसुलिन हाई होगी। तो इंसुलिन का क्या काम है? स्टोर करना। तो फैट सेल के अंदर, फैट स्टेट में इंसुलिन इज हाई, नॉर्मल फैट सेल का साइज क्या होता है? मैंने एक दफा बताया था, याद है? फैट सेल जो हमारे हैं नॉर्मल साइज के 10 to 20 माइक्रॉन्स। ठीक है। एंड इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ गोइंग अप टू 200 माइक्रॉन, ये इसकी कैपेसिटी है, यहां तक ये जा सकता है। अब इंसुलिन हाई थी
उसने ठोस ठोस के इसके अंदर भरना शुरू कर दिया। ये 20 माइक्रोन से हुआ 30, 50, 100 और फिर अल्टीमेटली 200, अपनी अल्टीमेट लिमिट को पहुंच गया। इंसुलिन अंदर ठोसती रही इसके। जब ये अपने मैक्सिमम साइज को पहुंच गया तो अब इसके पास दो ऑप्शंस है, या तो ये फट जाए बैलून की तरह, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अ फैट सेल एट एनी कॉस्ट। ठीक है जी, वो फटना नहीं चाहता, तो फिर वो क्या करता है, वो इंसुलिन का नाफरमान हो जाता है। वो कहता है बीबी खुदा का वास्ता है, मैं 10 से चला था, तुमने मुझे 200 तक पहुंचा दिया है, अब आगे मारना है मुझे। आई डोंट entertain you, and this is called insulin resistance at the level of the fat cell. अब इसने इंसुलिन की बात माननी बंद कर दी और इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया। समझ आ गई बात? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, ठीक हो गया। इसने कहा मुझे नहीं चाहिए फैट, नाफरमानी की, मजीद लेनी, उससे बंद कर दी। और अब ये जो भर गया हुआ था, इसने फ्री फैटी एसिड यहां से लीक करने शुरू कर दिए, इसने खुद ही। फ्री फैटी एसिड्स, जब लाइपोलिसिस होता है फैट का, दैट इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्री फैटी एसिड्स, इन्होंने लीक करना शुरू कर दिया। ठीक है, बात समझ आई? ये जो फ्री फैटी एसिड्स यहां से लीक कर रहे हैं, अब क्या चीज हो गई, हाई फ्री फैटी एसिड्स प्लस हाई इंसुलिन। इंसुलिन भी आई है, समझ आ गई बात? दिस नाउ काजेज अ परफेक्ट स्टॉर्म, मेटाबॉलिक स्टॉर्म। अब तूफान आ गया बॉडी के अंदर। ये फ्री फैटी एसिड जो यहां से रिलीज हुए, दे गो टू द लिवर। क्यों लिवर में जाते हैं? आपकी सर्कुलेशन में तो नहीं इनको रख सकते, इनको कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाना है। तो इंसुलिन अब लिवर को ये कहती है कि भाई ये तो नाफरमान हो गया, मेरी मान नहीं रहा, अपने अंदर रखने को तैयार नहीं है, इसने सब कुछ इधर छोड़ दिया है, खुदा के लिए इनको किसी ठिकाने लगाओ और तुम ले लो ये। एंड लिवर रेडिली पुल्स दीज फ्री फैटी एसिड्स, ये मान लेता है उसकी बात। बात समझ आ गई कि लिवर के अंदर मैंने कहा है कि दो तरीके से फैट आती है, एक फैट सेल से आती है और एक डिनोवो लाइफ। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि फैट सेल से कैसे आती है, वो मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया कि फैट सेल बिकम्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, इट लीक्स इट फैट्स फॉर इट्स ओन सर्वाइवल एंड दैट फैट इज देन रेडिली पुल्ड अप बाय द लिवर। और लिवर के अंदर चूंकि इंसुलिन हाई है, लिवर के अंदर ये स्टोर भी हो गया, और चूंकि इंसुलिन हाई है, अब ये उधर स्टोर ही रहेगा जब तक इंसुलिन नीचे नहीं आएगी। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है बात? चले, ये तो नहीं बढ़ता ना। नो, आप इतनी मोटी हो जाती, आप क्यों नहीं फट जाती? हर बंदे को सर्वाइवल प्यारा है इसी तरह सेल्स को भी प्यारा है हाँ जी, हाँ, ये फटता नहीं है, लेकिन ये फैट को लीक करना शुरू कर देता है अपने सर्वाइवल के लिए। जी फैट का तो क्लियर हो गया ना जी, फैट तो 10% है। हाँ, वो तो हमने शुरू में क्लियर कर लिया। और ये फीडिंग क्यों है, पहली बात तो ये है, सवाल अब ये पैदा होता है कि ये इंसुलिन हाई क्यों रहती है? वी आर ईटिंग ऑल द टाइम। हम कौन सा लम्हा है जिसमें नहीं खाते? हम सिर्फ तभी नहीं खाते जब सोते हैं, जो वो तारिक मियां साहब मिसाल देते होते हैं। सुबह नाश्ता किया, दोपहर को साहब पहुंचे दफ्तर, आगे चाय और 2 कुकीज आ गए 11 बजे, अभी वो ठिकाने नहीं लगे तो लंच का टाइम आ गया, लंच का टाइम गुजरा तो 4 बजे फिर चाय और कुछ साथ कुछ चीज आ गई, घर गए, बेगम ने शानदार डिनर बनाया हुआ है, रात हुई, बच्चों ने डील मंगा ली,
आप मुझे ये बताइए कि आप किस वक्त अपनी बॉडी को रेस्टिंग स्टेट में लाते हैं इंसुलिन की। ठीक हो गया। तो अब जब ये सारा लिवर के अंदर जाके फैट स्टोर हो गई तो लिवर फैटी हो गया। ये बात तो, ये हमने बात कर ली फास्टिंग स्टेट की, हाँ सॉरी फैट स्टेट की। अब हम बात करते हैं फास्टिंग स्टेट की, जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं। एक हमने शुरू में ही बात तय कर ली थी कि इंसुलिन हाई होगी तो फ्री फैटी एसिड्स क्या होंगे, स्टोर होंगे, फैटी लिवर होगा, फ्री फैटी, क्योंकि बॉडी के अंदर इफ इंसुलिन इज हाई फ्री फैटी एसिड्स गो इन अपोजिट डायरेक्शन, और जब इंसुलिन इज लो तो फ्री फैटी एसिड्स ज्यादा निकलेंगे। ठीक हो गया ना जी। रेजिस्टेंस में भी निकल रहे हैं, लेकिन अभी जब मैं फैट से आपको बताता हूं ना इसकी फास्टिंग स्टेट, तब आपको असल बात समझ आएगी जिस पॉइंट की तरफ मैं लेके आना चाह रहा हूं। अब फास्टिंग में इंसुलिन लो हो गई, ठीक है जी, फास्टिंग आपने की तो इंसुलिन लो हो गई, और जब इंसुलिन लो होती है आपकी तो लाइपोलिसिस बढ़ेगा या कम होगा, है लाइपोलिसिस बढ़ेगा, क्योंकि इंसुलिन ने पहले होल्ड कराया हुआ था ना, वो उसको निकलने नहीं दे रही। अब हो गई, आपने कर ली फास्टिंग, आप जा रहे हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग पे, सपोज आपने जब इंसुलिन को लो रखा तो लाइपोलिसिस बढ़ गया, लिवर में से फैट निकलनी शुरू हो गई, लाइपोलिसिस। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि फास्टिंग करने से आप पतले होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये कहा कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंट फैट सेल में से फैट जाती है वो सीधी लिवर के अंदर चली जाती है। ये आपके सवाल का जवाब आ रहा है, जो अभी कंफ्यूजन थी आपकी वो भी दूर होने लगी है। जब फेड स्टेट में इंसुलिन रेजिस्टेंट फैट सेल में से फ्री फैटी एसिड निकले, वो लिवर के अंदर चले गए और वहां जाके डिपॉजिट होगा, और इंसुलिन चूंकि हाई थी वो अब निकलने नहीं दे रही। अब उल्ट हो रहा है, लेकिन फ्री फैटी एसिड भी आ रहे हैं, वो वहां से फिर भी निकल रहे हैं और ज्यादा मिकदार में निकल रहे हैं। अब क्योंकि अब आप फास्टिंग है, आप कुछ नहीं खा रहे, इंसुलिन लो है, तो आपके फैट सेल में से अब भी फ्री फैटी एसिड्स आ रहे हैं, और ये फ्री फैटी एसिड भी लिवर की तरफ ही जा रहे हैं थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। नहीं नहीं, लिवर के अंदर जो आए थे वो तो पड़े ही हुए हैं ना उधर। वो तो जो जब हमने फेड स्टेट की बात की थी तो वहां से जो हमारा लाइपोलिसिस हुआ था वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हुआ था, वहां से फ्री फैटी एसिड निकले थे और इंसुलिन ने उनको ठिकाने लगाया था लिवर के अंदर, और चूंकि इंसुलिन हाई थी तो वो वहां पे टिक गए। अब आप कर रहे हैं फास्टिंग। अच्छा, निकलने का जो अमल है ना जो आप कह रहे हैं वो बाद में आएगा स्टेप वाइज, कि लिवर में से अब फैट ने निकलना कैसे वो बात की बात है, पहले डिपॉजिट का अमल समझ लें। ठीक है, तो एक डिपॉजिट हुआ था इंक्रीज्ड इंसुलिन के जेर असर, और उसकी वजह से जो फ्री फैटी एसिड्स नाफरमानी की वजह से निकले थे वो इंसुलिन ने ठिकाने लगा दिए लिवर के अंदर, और उससे लिवर फैटी हो गया। दूसरा ये है कि जब इंसुलिन लो है तो लाइपोलिसिस बढ़ेगा, क्योंकि अब इसने जो पहले रोका हुआ था, अब वो यानी ये पहले लाइपोलिसिस होने नहीं थी दे रही, तो अब जब ये हट गई तो लाइपोलिसिस अब ऑटोमेटिक हो रहा है, अब नाफरमानी के जरिए नहीं हो रहा, अब ऑटोमेटिक हो रहा है और कहीं ज्यादा हो रहा है। अब भी फ्री फैटी एसिड निकल के लिवर में जा रहे हैं। तो लिवर को फैटी होना चाहिए या लिवर को श्रिंक करना चाहिए? लिवर से भी तो फैटी एसिड्स वो भी तो खुद ही निकल रहे हैं वहां से। अभी उस तरफ नहीं जाना आपने, लिवर से निकलने की बात ना करें अभी।
पहले जब गए हैं तो जाके डिपॉजिट हो गए, अब जब गए हैं तो ये फैटी, अगर डिपॉजिट नहीं हो रहे तो किधर जा रहे हैं? दे आर बीइंग बर्न। लिवर में जब कोई चीज डिपॉजिट नहीं होगी, लिवर हैज द ओनली ऑप्शन टू बर्न इट। बारीक फर्क समझ आ गया? अब जो जा रहे हैं वो डिपॉजिट नहीं होंगे क्योंकि इंसुलिन नहीं है ना, वो नीचे है। आपने सुबह से खाया हुआ इंटरमीडिएट फास्टिंग में है, 18 घंटे आपने 16 गुजार लिए हैं, इंसुलिन तो बॉडी में बहुत नीचे चली गई है। फ्री फैटी एसिड तेजी से निकल रहे हैं, तेजी से निकल रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू द लिवर, एंड लिवर हैज नो अदर ऑप्शंस। अगर उसने स्टोर नहीं करने तो फिर क्या करना है? फिर बर्न करने हैं। बर्न कैसे करेगा? थ्रू सिट्रेट साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। और ये इतनी तेजी के साथ और इतनी मिकदार में इसके अंदर अब तेजी से वो वहां से निकल रहे हैं, इसीलिए तो आप पतले होते हैं फाका करके। बात समझ आ रही है यहां तक? ये बातें इस तरह किसी ने नहीं समझानी, सब लोगों ने अपनी लिवर की दवाइयां बेच के जानी है आपके पास। सिर्फ ये बताएंगे कि जी ये ऐसे होता है, ये स्टडी है, अगर इलाज नहीं करोगे तो फिर ये होगा तो वो होगा, तो ये दवाई है तो फलान है, आपको दवाइयां थमा के जाएंगे, ये प्रोसेस नहीं समझाएंगे। इनवर्स रिलेशन है, ये तो हमने शुरू में पढ़ लिया ना कि फ्री फैटी एसिड ज्यादा होंगे जब इंसुलिन नीचे होगी। ठीक है जी, इंसुलिन ऊपर होगी तो फ्री फैटी एसिड कम आएंगे। एनीवेज, अब सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर बर्निंग हो रही है, लिवर उसको थ्रू द सिट्रेट साइकिल उसको बर्न करता चला जा रहा है। आखिरकार सिट्रिक एसिड साइकिल या सिट्रेट साइकिल कहेगा यार खुदा का वास्ता है, अब वो लिवर की मिन्नतें कर रहा है कि तुम मुझे इतनी फैट दे रहे हो बर्न करने के लिए, फ्री फैटी एसिड दिए जा रहे हो, मेरी फैक्ट्री तो तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं कर सकती। कहा मैं कैसे खिलाऊं इतनी तेजी से? क्योंकि जब आप फास्टिंग स्टेट में होते हैं तेजी से लिवर में आपके जो लाइपोलिसिस के जरिए फैट लिवर में जा रही होती है तेजी से, और उतनी तेजी से बर्न हो रही होती है। लिवर के अंदर ही सिट्रिक एसिड साइकिल है, उसी के अंदर वो बर्न हो रही होती है। अब लिवर ये कहता है कि लिवर को जो सिट्रिक एसिड साइकिल का जो कंपोनेंट है वो कहता है भाई मेरे मैं कहाँ इसको जलाऊं। अब लिवर क्या करेगा उस फैट को? सिट्रिक एसिड साइकिल ने तो हाथ उठा लिए, that will convert that extra fat which is not being burnt in the citric acid cycle, that will convert into ketone bodies which is called ketosis. आगे बात क्लियर जी? सर इसका मतलब कि जब हम फास्टिंग करेंगे तो साइकिल को फास्ट करते हैं, एट द एंड हम इसको केटोन बॉडी में चेंज करें जी, और ये कीटोसिस का अमल शुरू होता है 18 घंटे की फास्टिंग के बाद, उससे पहले नहीं। सारा। हाँ, अच्छा, लेकिन जो हाई जब इंसुलिन कम थी और वैसे टाइप 1 में भी केटोन बॉडी बनती है, उनकी भी इसी तरह बनती है? किसमें? टाइप 1 में अक्सर केटोन जी, उसमें ये होता है ना कि इंसुलिन जो है आपकी बहुत नीचे चली गई होती है, ठीक है ना जी। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, टाइप 1 के अंदर बॉडी चेंजेस स्विचेस इटसेल्फ टू द फैट बर्निंग। उस फैट बर्निंग की वजह से वो कीटोन बॉडीज बन रही होती हैं जो कि डीके में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ले जाती हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कीटोएसिडोसिस एंड कीटोसिस। कीटोएसिडोसिस इज एन इमरजेंसी, कीटोसिस इज गुड। कीटोसिस का मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो बॉडी की एक्स्ट्रा फैट है ये टूट के कीटोन बॉडीज में बन रही है, लेकिन इट विल नॉट लीड टू एसिडोसिस। प्रॉब्लम एसिडोसिस है। कीटोसिस मींस extra amount of ketones in the blood. Ketoacidosis means acidotic state in the blood under the influence of ketone bodies. वो पैथोलॉजिकल है, ये फिजियोलॉजिकल है। बिल्कुल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी जी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल फ्रूटी स्मेल आएगी। इसके बल्कि ब्रेथ में भी आएगी आपके। वो इसलिए आएगी कि कीटोन्स जो है, कीटोन्स बॉडी जो है वो आपके 110% गुड साइन। हाँ हाँ जी, यहां तक क्लियर है बात? क्यों जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब अगला मरहला यहां तक आ गया
जो मैंने 2 स्टोरेज फॉर्म बताई थी, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट द सेकेंड पार्ट डिनोवो लाइपोजेनेसिस आ गई। अब इसने न्यू फैट फॉर्मेशन कैसे होनी है, लिवर इसको नई फैट में कैसे कन्वर्ट करेगा। पहली बात यह है कि न्यू फैट फॉर्मेशन इज 3 टाइम्स हायर इन पीपल विद फैटी लिवर डिजीज देन विदाउट। अगर आपका पहले ही फैटी लिवर डिजीज है और आप इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो अब आपकी न्यू फैट फॉर्मेशन 3 गुना ज्यादा होगी। तो फैटी लिवर डिजीज तो पाकिस्तान की 50% आबादी की है, तो जब वो तक वो अपनी खाने पीने की हैबिट्स चेंज नहीं करेंगे, तो ये डिनोवो लाइपोजेनेसिस का अमल 3 गुना ज्यादा होता है उन लोगों की निस्बत जिनके लिवर में पहले फैट नहीं है। उनके लिवर में जब जाएगी फैट, सॉरी ये आपके फ्री फैटी एसिड जाएंगे। एक बंदा है जिसके अंदर लिवर में फैट नहीं है, एक बंदा है जिसके लिवर में पहले ही फैट पड़ी है, तो ये जो न्यू फैट फॉर्मेशन का अमल है उस बंदे में 3 गुना ज्यादा तेजी से होगा जिसके लिवर में पहले फैट मौजूद है। और ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी नई फैट बनती है, किधर अभी कैपेसिटी फुल नहीं हुई, स्टेप वाइज चले ना, स्टेप वाइज। अभी अभी स्टोरेज समझ ले, कैपेसिटी फुल होगी क्या होगा, आपके हर सवाल का जवाब आएगा, ठीक है। और जो फैट ये बनाता है, ये याद रख लें, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है कि लिवर जब डिनोवो लाइपोजेनेसिस के जरिए जो फैट बनाता है वो सैचुरेटेड फैट होती है। ओनली वन टाइप ऑफ फैट दैट इज पाल्मिटिक एसिड और पाल्मिटेट, ये सिर्फ एक तरह की फैट बनाता है, ठीक है, सिर्फ एक तरह की फैट। दोनों एक जैसे वेट की एक बहुत ज्यादा और एक नहीं। हाँ, वो सब सेपरेट कॉन्सेप्ट है, हम बिल्कुल ट्रैक से हट जाएंगे, वो सेपरेट कॉन्सेप्ट है। अभी हम सिर्फ फैटी लिवर की बात कर रहे हैं कि फैटी लिवर कैसे होता है। तो लिवर में जब न्यू फैट फॉर्मेशन होगी तो वो पैल्मिटिक एसिड होगा, और यही पैल्मिटिक एसिड है जो आपकी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट में हाई ट्राइग्लिसराइड में आता है। दिस इज एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ दैट द फैट which is being shown in high triglyceride level, that is the palmitic acid. नहीं, जो नई फैट बनी है ना, जो भी बनेगी वो फैट पैल्मिटिक एसिड बनेगा। जी बिल्कुल, सारी फैट जो लिवर के अंदर बन रही है, जो फैट फ्री फैटी एसिड लिवर के अंदर चले गए, दैट आर कन्वर्टेड टू पैल्मिटिक एसिड, सारे ही, हर तरह के। Only one kind of fat is there, that is palmitic acid, and this is the same palmitic acid which we measure in our triglyceride levels. And triglyceride, अभी हम बात करते हैं कि empty जब करता है, triglycerides leave the liver in the form of free fatty acids and then LDL cholesterol, वो भी सारा साइकिल हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया जी। तो ये पैल्मिटिक एसिड की शक्ल में आ गई बात। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली इंसुलिन की। अब इंडिपेंडेंट इंसुलिन पाथवेज है, 2 चीजें ऐसी हैं जिनको इंसुलिन की मदद नहीं चाहिए लिवर में जाने के लिए, एक फ्रुक्टोज और एक अल्कोहल, इनको नहीं चाहिए। इंसुलिन लो है, हाई है, तो फिर फ्रुक्टोज की बात आई, क्या ख्याल है। इसलिए यह कहा जाता है इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, इट इज मोर इंपॉर्टेंट हाउ यू ब्रेक दैट फास्ट। आपने 20 घंटे की फास्टिंग की है और जब खाना खाने लगे हैं तो वो आपने ऑरेंज जूस के गिलास के साथ आपने फास्टिंग तोड़ी है, तो ये फ्रूट तो सीधी फिर उधर चली गई, ठीक है। नंबर 2, मैंने पहले भी लेक्चर्स में 20वीं दफा बताया कि फ्रुक्टोज एंड अल्कोहल दे आर मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर इन द सेम वे, दोनों का पाथवे सेम है। फर्क क्या है, फॉर फ्रुक्टोज वी डू आर ओन फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप है मेटाबॉलिज्म का फ्रुक्टोज और अल्कोहल का, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। पहला स्टेप जो हम खुद करते हैं बॉडी, और अल्कोहल के लिए यीस्ट करती है। अल्कोहल है क्या,
दिस इज द फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ फ्रुक्टोज अंडर यीस्ट। अल्कोहल यही है ना। तो इसमें जो पहला स्टेप है अल्कोहल क्या, वो यीस्ट करेगी और बॉडी में जो फ्रुक्टोज जाती है उसका फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का हम खुद करते हैं। जब बॉडी में चला जाता है, बॉडी को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि ये फ्रुक्टोज है या अल्कोहल है। ठीक है, तो जितना शराब पीने वालों का लिवर तबाह होता है उतना ही फ्रुक्टोज लेने वालों का भी तबाह होता है। दैट्स द रीजन आवर चिल्ड्रन डोंट ड्रिंक अल्कोहल बट दे आर गेटिंग फैटी लिवर डिजीज एंड द डिजीजेस ऑफ अल्कोहल। क्या टाइप 2 डायबिटीज बच्चों में हो रही है, फैटी लिवर डिजीज बच्चों में हो रहा है, डिस्लिपिडीमिया बच्चों में हो रहा है। These are the diseases of alcohol. Before 1989, if someone reported at the clinician's clinic with fatty liver disease, it was 110% sure that he's alcoholic. But after 80s, when this fast food culture or SAD, standard American diet started, which now has become global, उसके अंदर फ्रुक्टोज का कंटेंट इतना हाई होता है that our children are getting the diseases of the adults, yet they are not drinking alcohol. What they are drinking? They are drinking fructose. जी, very little amount of fructose as compared to the fructose sweetened beverages, स्टिंग, बोतलें, आर्टिफिशियल जूसेस। फ्रूट के अंदर एक तो फ्रुक्टोज की क्वांटिटी बहुत लो है एंड आल्सो इट फ्रूट हैज द एंटीडोट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर जो कि इसकी एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता। सो फ्रूट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सो आई ऑलवेज से ईट द फ्रूट, डोंट ड्रिंक इट। बच्चों को फल खिलाइए, उनको जूस मत पिलाइए। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना हो गया हुआ। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। डायग्नोसिस कैसे करना है, इसमें भी आज आपको दो बड़े सिंपल रूल बता के जाऊंगा जो पहले किसी ने नहीं बताया आप। गोल्ड स्टैंडर्ड इज इमेजिंग। एमआरआई अल्ट्रासाउंड पे फैट बड़े आराम से नजर आ जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एमआरआई नहीं करा पाएंगे, मुश्किल है, महंगा है। तो आपने एलएफटीज के जरिए भी ये जांच सकते हैं कि फैटी लिवर है या फाइब्रोसिस है कि नहीं। वो कैसे, वो हम बताते हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी आपने एलएफटीज करवाने हैं फॉर लिवर डिजीज, तो अक्सर लोग एक्सरसाइज बहुत कर रहे होते हैं, वॉक बड़ी तेज कर रहे होते हैं कि ये जिम ज्वाइन किए हुए हैं, तो 24 to 48 आवर्स प्रायर टू टेस्टिंग आपने उसको रोकना है। बिकॉज दीज ट्रांसअमाइनेजेस एसजीएलटी, सॉरी आपका एएलटी और एएसटी, दे आल्सो आर ड्राइव फ्रॉम द मसल्स। तो ये मसल से भी निकलते हैं, आपका फॉल्स पॉजिटिवली हाई आ जाएगा। तो 2 दिन पहले आपने उनकी एक्सटेंसिव वर्कआउट, अगर तो वो हल्की फुल्की चहलकदमी करता ठीक है, लेकिन अगर कोई जिम जा रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है, जॉगिंग कर रहा है या वर्कआउट कर रहा है, तो आपने 48 आवर्स पहले वो बंद करें ताकि वो कंपोनेंट अंदर से रूल आउट हो जाए। अब एएलटी और एएसटी रेशो, एएलटी को तकसीम करें एएसटी के ऊपर, अगर 1 से ज्यादा या 2 के करीब है तो फैटी लिवर डिजीज इज कंफर्म्ड। ठीक है, फिर इसको उलट लें, एएसटी को ऊपर रखें, एएलटी को नीचे रख के तकसीम करें। इफ मोर देन 1, एडवांस्ड फाइब्रोसिस। इफ नो अल्कोहल, अगर वो अल्कोहल यूज नहीं कर रहा तो उसको एडवांस फाइब्रोसिस हो चुका हुआ। इफ लेस देन 0.8, रूल्स आउट द एडवांस फाइब्रोसिस। कैसी जबरदस्त बात है, सुनी थी पहले कभी? क्योंकि वो जो मसल में से भी तो एएलटी और एएसटी निकलेंगे ना, वो आ जाएंगे उसमें और फाल्सली एलिवेटेड आ जाएंगे। और फिर हमारे पास है एएसटी टू प्लेटिलेट रेशो, सीबीसी में प्लेटिलेट्स और एएसटी इंडेक्स। ये कैसे करना है जी? आपके पास उसकी रिपोर्ट्स हैं पुरानी, उसमें जो अपर नॉर्मल लिमिट वाला है एएसटी,
40-45। और दूसरी बात ये भी याद रखिए कि जो लेबोरेटरीज ALT और AST को 40 और 45-55 नॉर्मल दे रही हैं, दिस इज रबिश। ALT must never be more than 25 to 30 in any case। ये क्यों बढ़ा गई है, वैल्यू क्यों बढ़ाई गई थी? क्योंकि 45% जब वर्ल्ड पॉपुलेशन फैटी लिवर डिजीज के साथ है, तो जब उसका वो कट ऑफ निकालते हैं इस परसेंटेज की बुनियाद के ऊपर, उसकी वजह से वो बढ़ गया हुआ है 50 के ऊपर या 55 के ऊपर, और ऑर्डिनरीली 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए ALT। अच्छा, ये रेशो क्या है जी? AST अपर नॉर्मल लिमिट वाली जो है, अगर तो ये 5 है तो फिर ये टेस्ट नहीं करना। अपर नॉर्मल लिमिट का मतलब है 35, 40, 50 के करीब है तो उसकी अपर लिमिट है। CBC कराएं, प्लेटिलेट के साथ तकसीम करें और 100 से ज़रब दे दें, और अगर जवाब 2 से ज्यादा है तो उसका मतलब है सिरोसिस हो चुका हो। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड AST टू प्लेटिलेट रेशियो इंडेक्स। बात समझ आई? AST डिवाइडेड बाई प्लेटिलेट्स मल्टीप्लाइड बाई 100। सिर्फ देख लें आपने लिवर फंक्शन टेस्ट के ऊपर ही कैसे खेल लेते हैं। क्लियर है जी बात? अप्रोचेस टू करंटली अवेलेबल ट्रीटमेंट्स, ट्रीट मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो भी चीजें हैं, वेट लॉस कराएं, मेटफॉर्मिन और सिम्वास्टैटिन, लिवर डायरेक्ट। अच्छा, अब यहां पे मुझे बहुत बड़ा इख्तलाफ है, मैं दैट्स द रीजन आई नेवर गो फॉर द इंटरनेशनल एसोसिएशन गाइडलाइंस। यहां पे क्या लिखा हुआ है, मोटा बोल्ड, नेफल्डी डज नॉट इंक्रीज स्टैटिन रिस्क ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी। डज इट मेक सेंस? उसने कहा जी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को स्टैटिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बकवास, रबिश, गार्बेज। ठीक है, सिर्फ दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टैटिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अब कैसे है कि लिवर के ऊपर, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को कुछ नहीं होगा, ALT और AST तो बढ़ेगा ना, लिवर डैमेज तो बढ़ेगा ना। इस तरह से दे मेक गिमिक्स। और देखें कितने इसके रेफरेंसेस हैं। लिवर डायरेक्टेड ट्रीटमेंट में विटामिन E या पियोग्लिटाजोल, लीराग्लूटाइड, और ये एक अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टडीज ऑफ द लिवर डिजीज है जी, वो लीराग्लूटाइड वो कहता है कि देने का नहीं, लेकिन हम इसको जल्दी से डिसेक्ट आउट कर लेते हैं। दी क्या क्या हाँ जी, रिड्यूस हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा रिस्क, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा रिस्क को कम करना है। ये 4 अप्रोचेज हैं, कंट्रोल ओबेसिटी, रिड्यूस CVD रिस्क, रिड्यूस हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा रिस्क, एंड टारगेट द NASH, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, क्योंकि वहां से अब आगे फाइब्रोसिस और सिरोसिस शुरू होना है। तो इसको यहां तक ही ट्रीट कर लें, अगली 2 स्टेजेस पे ना जाने दें, जो शुरू में मैंने 4 बताई जी। इन द ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर डिजीज, कैफिनेटेड बेवरेजेस, वो ये कहते हैं जी कि इसके साथ आपकी जो लिवर फैट है उसकी मोबिलाइजेशन होती है। लिवर फैट इज मोबिलाइज्ड कहते हैं, गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, लेकिन जस्टिफिकेशन इसकी मेरी नजर में सिर्फ इतनी है कि दिस इज द ओनली बेवरेज which you can use during intermittent fasting, which does not increase your carbohydrate level and hence it does not increase your insulin level. जी, ब्लैक कॉफी विदाउट मिल्क एंड शुगर, विदाउट मिल्क एंड शुगर। चलें जी, अब लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। कैलोरी रिडक्शन मोर देन 30%, जो कुछ आप खा रहे हैं उसमें 30% की रिडक्शन कर दें, या सिंपली 750 से 1000 किलो कैलोरीज पर डे अगर आप माइनस कर दें, इट improves your insulin resistance and hepatic steatosis. Limit consumption of fructose enriched beverages, जो बात होती है। वेट लॉस करना है, कितना करना है? 3 से 5% कर लें तो स्टीटोसिस बेहतर हो जाता है, लेकिन 6 से 10% कर लें तो तब जाके NASH या फाइब्रोसिस पे फर्क पड़ेगा।
अगर सिर्फ आपने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को ट्रीट करना है तो 3 से 5%, लेकिन 6 से 10% चाहिए नैश और फाइब्रोसिस को रिवर्स करने के लिए। एक्सरसाइज alone may reduce steatosis, non-alcoholic fatty liver disease, but effect on other histological features is unknown। कि एक्सरसाइज से नैश या बाकी के जो दो हैं फाइब्रोसिस और सिरोसिस को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन फैटी लिवर डिजीज जो कि पहला था स्टीटोसिस, उसको फर्क पड़ता है। अल्कोहल रिडक्शन, बल्कि रिडक्शन नहीं, हम तो अल्लाह का शुक्र है, वी से नो। इनसुफिशिएंट डाटा ऑन हाउ मच रिडक्शन, ये हमें नहीं पता कि कितनी रिड्यूस करेंगे। हर बंदा डिफरेंट पीता है, कुछ 1 गिलास पीता है, कोई 10 पीता है, कोई पूरी बोतल चढ़ाता है। ये हमें नहीं पता कितनी रिड्यूस करनी है, लेकिन ये हमें पता है कि 2 कप्स ऑफ कैफिनेटेड कॉफी डेली लीड्स टू द इंप्रूवमेंट इन नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, जिसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया। नाउ फाइब्रोसिस के ऊपर वेट लॉस का फर्क, अगर आप 5% से कम वेट लॉस करेंगे तो ये देखिए ये सारे पैरामीटर्स में इतना फर्क पड़ेगा। 5 से लेके 7 तक वेट लॉस करेंगे परसेंट तो इतना फर्क है, 7 से 10 तक करेंगे तो इतना फर्क है, और 10 से ऊपर करेंगे तो इतना। तो बड़ा वेरिएबल सा रिस्पॉन्स है, लेकिन ये जरूर है कि जितना ज्यादा आप वेट लॉस करेंगे उतना ही फायदा है। ठीक हो गया जी। ये 52 वीक्स ऑफ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन ट्रायल, बेसलाइन जो वेट है, अगर उससे 5% आप लेस कर देंगे तो ये फायदा है। किसका? हाँ, नॉर्मल वेट है तो हाँ नहीं, उसको क्यों करेंगे? मोस्टली ये होता ही हाई फैटी। फैट आई कहाँ से है? आप फैट हुए हैं तो आई है। लीन पर्सन में भी होता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लीन पर्सन में भी होता है। लेकिन 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 वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज तक ही होगा, वो नैश फाइब्रोसिस पे नहीं जाता। तो उसके लिए अगर इतना ही 5%, मतलब अगर एक बंदा 100 किलोग्राम का है तो 95 करना कौन सा ऐसी बड़ी बात है? 65 किलोग्राम वाले का 5% कितना बनेगा? 50 वाले का 5% का 2.5 किलोग्राम। अगर नॉर्मल वेट से 2.5 किलोग्राम नीचे भी आ जाएगा तो उससे क्या होगा? उसकी चीजें इंप्रूव कर जाएंगी। सो दैट इज नॉट अ बिग डील। 5% इज नॉट अ बिग डील, 7% भी इवन नॉट अ बिग डील किसी भी वेट के लिए। लें जी, प्रैक्टिस गाइडेंस फॉर फार्माकोलॉजिकल। अब जो सबसे अहम चीज है, दवाइयां कौन सी देनी है। ठीक हो गया जी। मेटफॉर्मिन तो बिल्कुल नहीं देनी। ठीक है जी। ये जो आपने वेट लॉस के लिए मेटफॉर्मिन का मजाक बनाया हुआ है, मेटफॉर्मिन इज बेसिकली अ माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिन, ये ज़हन में रखिएगा। और दूसरा, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इफ यू आर डूइंग स्टर्नोस एक्सरसाइज एंड यूजिंग मेटफॉर्मिन एट द सेम टाइम, you are going to abolish all the beneficial effects of exercise। एक्सरसाइज के इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है। मेटफॉर्मिन भी लेनी है तो हम क्या कहते हैं, खवातीन हमारी पीसीओज वाली को क्या कहते हैं, हमारी लेडी डॉक्टर माशाल्लाह रिनाउंड बैठी हुई है, उन्होंने कहती है दौड़ा लाई जा बीबी, जिम ज्वाइन करते मेटफॉर्मिन खा, है ना जी। मेटफॉर्मिन खिलानी है तो एक्सरसाइज फिर नहीं करानी, अगर एक्सरसाइज करानी तो फिर मेटफॉर्मिन नहीं खिलानी। क्या क्या फर्क पड़ता है वेट रिडक्शन में? तो अगर मेटफॉर्मिन वाले खुद कह रहे हो, आपने लिटरेचर में लिखा हो कि दिस इज वेट न्यूट्रल मेडिसिन, कभी लिटरेचर पढ़े ना उसका? कंपनी तो दावा नहीं करती ये वेट रिड्यूस करती है। दिस इज वेट न्यूट्रल, ना बढ़ाती है ना कम करती है। पता नहीं कैसे होता, आई डोंट। पाकिस्तान में दम से भी तो लोग ठीक हो जाते हैं, वो कैसे होता? चले, मेटफॉर्मिन, पियोग्लिटाजोन, दिस इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड मेडिसिन। 2008 में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन यूएसए में कर रहा था तो उस वक्त पायोग्लिटाजोन को वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के लिए 2008 में यूज कर रहे थे वहां पे। इट इंप्रूव्स लिवर हिस्टोलॉजी इन पेशेंट्स विद एंड विदाउट टाइप 2 डायबिटीज विद बायोप्सी प्रूवन नैश। ठीक है जी, जिनकी बायोप्सी से नैश नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस प्रूव्ड है। रिस्क एंड बेनिफिट्स शुड बी डिस्कस्ड विद ईच पेशेंट। रिस्क और बेनिफिट्स क्या है? जब आप पायोग्लिटाजोन देंगे तो उसका बॉडी फैट बढ़ेगी। दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट जो कि लिवर से और विसरा से निकल के आपकी बैली पे आती है, पेट बढ़ जाता है इससे।
ठीक है, पेट बढ़ेगा लेकिन वो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, लिवर में से फैट निकलेगी तो जाएगी किधर, वो फिर यहाँ पे सबकुटेनियस। और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो जो सबकुटेनियस फैट इकट्ठी हो रही है, एक्युमुलेट हो रही है, दैट्स गुड, बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ पायोग्लिटाजोन इज टू increase the increase the fat cells by the process of hyperplasia, यानी न्यू फैट सेल बनते जाएंगे जो कि आगे आएंगे। जब न्यू फैट सेल बढ़ते जाएंगे तो ये ऐसे ही है कि जैसे बहुत सारी बारात को ठहराने के लिए कमरे आपने ज्यादा बना लिए। जी नहीं नहीं, जो पायोग्लिटाजोन लेंगे जी, इंसुलिन सेंसिटाइजर है, उसका उनका पेट ज्यादा होगा, खवातीन में हिप्स एंड बट्स ज्यादा होंगे। हाँ जी, वो इसलिए ज्यादा होंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट हुई है ना, अंदर से विसरस से और लिवर से निकल के अब उसने कहीं तो जाना है ना, तो कहाँ जाएगी पायोग्लिटाजोन आपके, इट मेक्स न्यू फैट सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ, क्योंकि फैट सेल दो तरीके से बनते हैं, हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी से क्या होता है वो हमने देख लिया, बढ़ने से, दैट इज नॉट गुड। हाइपरप्लेजिया इज गुड, the fat you are personally harboring around you, that may be a sign of hyperplastic growth, जिसमें आपके फैट सेल ज्यादा है। दैट्स वाई मे बी, मुझे नहीं पता आपका मेटाबॉलिक स्टेटस क्या है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ खवातीन विच हार्बर fat around their hips, butts, and those female prototypical sites, that means they are growing their fat cell by the process of hyperplasia, provided they are not diabetic, they are not dyslipidemic, they are not hypertensive, and they are not living with फैटी लिवर डिजीज। अगर उनमें मेटाबॉलिक डिजीजेस नहीं है और वो बहुत मोटी है, मेरे पास बहुत सारी खवातीन आती हैं जिनकी शक्ल पे लिखा होता है यार फिट ही नहीं है, सारे जहान के टेस्ट करा लो, हर चीज नॉर्मल होती है, लेकिन वो खुद इतनी इतनी होती हैं, तो वो हाइपरप्लास्टिक ग्रोथ है, विच इज गुड। हाँ जी, विसरा में से निकल के बाहर आती है और वहां पे पायोग्लिटाजोन उनके लिए नए कमरे बना देती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइपरप्लास्टिक ग्रोथ। गुड हो गया। GLP-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो आपके लीराग्लूटाइड, विक्टोजा वगैरह क्या करते हैं कुछ नहीं पता, दिए जाते हैं ऑफ लेवल, लेकिन इसका भी कुछ नहीं पता। विटामिन ई बड़ा यूज होता है, ठीक है, इसके जरा देख लें कैसे यूज करना है। 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे इंप्रूव्स लिवर हिस्टोलॉजी इन नॉन डायबिटिक एडल्ट्स, और डायबिटिक को विटामिन ई नहीं देनी। देयर आर नाउ स्टडीज दैट विटामिन ई और ई बियॉन्ड may cause stroke in diabetic patients। जी स्ट्रोक से नहीं, हार्ट अटैक से कहा था उन्होंने। हाँ, स्ट्रोक और चीज है, स्ट्रोक फालिज को कहते हैं। ठीक हो गया। तो नॉन डायबिटिक एडल्ट्स में रिस्क एंड बेनिफिट शुड बी डिस्कस्ड, नॉट रिकमेंडेड फॉर नैश इन डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट्स में नहीं देनी। नेफल डी में अगर देनी है तो पहले लिवर बायोप्सी करके प्रूव करें कि अगर उसको नैश है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, लिवर बायोप्सी फिर देनी है। नैश सिरोसिस और क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। क्रिप्टोजेनिक क्या होता है? अननोन एटियोलॉजी, जिसका पता ही नहीं क्यों हो गया। हेपेटाइटिस बी सी सब क्लियर है, सब कुछ नॉर्मल है, तब क्यों हो रहा है? दैट इज क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस, वहां भी नहीं देनी। ठीक हो गया जी। नहीं, मना नहीं है, मना ना हो वो जी, वो मिटिगेट करती है। ये नई स्टडी आई है अभी, ठीक है, जिसके ऊपर फर्दर बात हो रही है, लेकिन ये भी काफी वेल प्रूवन है। इसका हल उन्होंने ये निकाला है कि आप अगर हफ्ते में 2 दिन वॉक करें या 3 दिन करें, तो वॉक वाले दिन, यानी अगर आपने शाम में वॉक करनी है तो उस दिन शाम की डोज ना लें, मॉर्निंग में करनी है तो मॉर्निंग डोज मिट कर दें। ठीक है जी, मेटफॉर्मिन। और अगर आपकी बहुत वेल कंट्रोल्ड है तो जिस दिन वॉक करने जाना है उस दिन मेटफॉर्मिन ना लें। तो ये है ना कि शाम को दे दे, मेटफॉर्मिन सुबह कर दे। हाँ जी, ऐसे कर। ठीक है जी, दिस इज द मोर कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रीटिंग नैश और liver fat, but here in this metabolic classroom we don't go conventionally, we are unconventional। ठीक है।
हमारा तो एक ही मंत्र है, कीप योर इंसुलिन एज लो एज पॉसिबल। इंसुलिन नीचे रहेगी तो बेनिफिट बता दिए क्या हुआ, इंसुलिन हाई रहेगी तो नुकसान क्या थे वो बता दिए। तो इंसुलिन लो कैसे रहेगी? फास्टिंग, फास्टिंग एंड फास्टिंग। ठीक है जी, ठीक है। और अगर आपसे, आप जाहिर है पूरा महीना फास्टिंग तो नहीं कर सकते सिवाय रमजान के, तो एक काम तो ये करें कि अपने आप को हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट पे ले जाएं और कार्बोहाइड्रेट्स जितना कट कर सकते हैं कट कर दें, फैटी लिवर डिजीज रिवर्स होना शुरू हो जाएगी एंड इट गेट्स रिवर्स विद इन वीक्स। तारिक मियां साहब का फैटी लिवर डिजीज लो कार्ब डाइट के ऊपर 2 वीक्स के अंदर रिवर्स्ड। कीटो डाइट तो हम उसको कहेंगे ना जो कि कीटोसिस करेगी, वो तो बड़ी अल्टीमेट है ना, वो तो हाई फैट हाई, वो तो फास्टिंग कीटोन तब बनेगी ना जब आप फास्टिंग करेंगे। हाँ जी, ठीक हो गया जी। तो वी आर अनकन्वेंशनल, हम इन दवाइयों पे बिलीव नहीं करते, हम तो लो कार्ब लाइफस्टाइल पे बिलीव करते हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग ये चीजें कहीं प्रेजेंट करते हैं या किसी के साथ आर्गुमेंट करते हैं, तो सबसे पहला बंदा जो भागता हुआ आता है वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और नहीं नहीं चलेंगे आगे चलते हैं, आगे रोक दे रोक दे रोक दे, कोई बात नहीं, मैं आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दिस। ठीक है जी, वो बात को आगे नहीं करने देते। ठीक हो गया, या कुछ और चौधरी अंदर डाल जाते हैं। ठीक है जी, चले जी चले आगे चले, कोई बात नहीं, और जो कोई और क्वेश्चन है तो चले, वो करने नहीं देते। तो मैं वहां पे अड़ जाता हूं, मैं कहता नहीं जी ये पहले हल होगा तो बात आगे चलेगी। अच्छा, वो क्यों अड़ क्यों जाते हैं, क्यों बात को आगे चलने नहीं देते? नहीं, ये पढ़ लें, हम ऐसे दौर में रहते हैं जहां पे ज़हीन लोगों को इसलिए खामोश कर दिया जाता है ताकि बेवकूफ लोग नाराज ना हो जाए। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्र। ठीक है जी, तो हमने तो पहले अर्ज कर दिया कि हम तो नॉन कन्वेंशनल लोग हैं। सिर्फ हौसला देना। ठीक हो गया जी, फैटी लिवर डिजीज। अब आप बहस कर सकते हैं। अगला जो लेक्चर है नेक्स्ट संडे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप 1 डायबिटीज। प्रोफेसर मोहम्मद अली को मैंने कहा है वो तशरीफ लाएंगे और आपको टाइप 1 डायबिटीज में और दूसरी कन्वेंशनल रेयर टाइप्स में फर्क बताएंगे, कौन से टेस्ट हैं, किस तरह से इंसुलिन देनी है वो बताएंगे। और उससे अगला लेक्चर जो मैं करूंगा नेक्स्ट, वो होगा, आप लिपिड प्रोफाइल पे हमने कर लिया हुआ है, मैं करूंगा लिपिड मेटाबॉलिज्म पे, ताकि आपको हमेशा के लिए ये बात समझा दूं कि जो आप डाइटरी फैट खाते हैं वो जाती किधर है। क्या वो आर्टरीज को क्लॉग करती है जो कि हमारे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, या वो जाके लिवर के अंदर बैठती है? उसका तो लिवर की हमने बात कर ली, 10% जाती है सिर्फ, लेकिन वो बॉडी में मुंह के रास्ते जब पेट में जाती है तो फिर आगे किधर जाती है, वो पूरा मैं आपको पूरा मैकेनिज्म बता दूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पार्टिसिपेशन। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक पहली ईयर्स के लास्ट लेक्चर में आपने कहा था बच्चियों को खाना पकाना सिखाएं, जी 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 तो बच्चों लड़कों को भी सिखाएं। लड़कियां जी काम करने घर से निकलती हैं, लड़कों को भी पकाना आना चाहिए। जी, ठीक है जी, उनको भी सिखाते हैं। दूसरी और बात ये कि आपने आज कहा कि जो मेटफॉर्मिन दी जाती है, हमारे पास एक मोटी औरत आती है जिसको पीसीओएस भी है, इसकी प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी है, ओबेसिटी है, उसको फिर मेटफॉर्मिन की क्या दें? जी, मेटफॉर्मिन का कोई रोल नहीं है सर पीसीओएस में। सर हमारा, सर बिल्कुल है, क्यों नहीं है पीसीओएस में रोल उसका? जी बताइए, आप ये तो बताइए, गलत बात है। बताइए सर पीसीओएस में मेटफॉर्मिन का रोल है, अब हमारे क्या पास है, ओबेसिटी, बताइए। सर वो इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करती है, उनकी ओवुलेशन बेहतर करती है, और क्लोमिफेन से बेहतर रहती है जो लोग इनिशियली आते हैं हमारे पास। जी जी, सवाए इसलिए इसके कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को एट द लेवल ऑफ लिवर, सिर्फ लिवर के ऊपर। लिवर को नहीं छेड़ती, आई एग्री विद, जो लिवर को नहीं छेड़ती, मैं जी पीसीओएस की बात कर रहा हूँ। सर, मेरी अर्ज तो सुन ले, अभी तो मैंने बात पूरी नहीं जी की। मेटफॉर्मिन का 90% एक्शन लिवर के ऊपर है। जी, लेकिन फैटी लिवर तो काम नहीं करती। सर नहीं, मैंने कब कहा है? मैंने तो कहा ही नहीं है फैटी लिवर, मैं अभी आपकी पीसीओएस का जवाब दे रहा हूं। अच्छा आपका मेटफॉर्मिन
metformin is an insulin sensitizer जी at the level of the liver only. लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादातर आपके मसल्स के अंदर होती है, आपके एडिपोज टिश्यू में होती है, वहां पे पायोग्लिटाजोन काम करती है, मेटफॉर्मिन नहीं करती। अग्रीड सर, मेरी प्रॉब्लम पीसीओएस है सिर्फ। तो मेरे पास एक यंग पेशेंट आती है इनफर्टिलिटी का, जी ठीक है जी जी, उसको फैटी लिवर भी, ओबेसिटी भी है, पीसीओएस भी है। जी जी। मुझे उसको मेटफॉर्मिन देनी पड़ती है क्योंकि आई थिंक इट इज मोर सेफर देन हर क्लोमिफेन और अदर हार्मोनल ट्रीटमेंट। आपकी क्लोमिफेन बात तो ठीक है, देनी नहीं है, और क्यों मेटफॉर्मिन नहीं देनी, आपके एग्री जी, मेटफॉर्मिन की, क्योंकि ये जो मैंने, अगर आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया है पीसीओएस के ऊपर, कर रहा हूँ। तो पीसीओएस जो है दैट इज द डिजीज ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया, ठीक है जी, और इंक्रीज सेक्स बाइंडिंग हार्मोन्स, सेक्स बाइंडिंग हार्मोन ग्लोबुलिन्स, उनकी ग्लोबुलिन जी रिडक्शन हो जाती है, ठीक है जी। जी और जो उसका एरोमाटेज एंजाइम है जो कि कन्वर्जन करता है आपके टेस्टोस्टेरोन की जी इनटू द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो नीचे चला जाता है। तो इस जी सारे बिल्कुल। 3 मैकेनिज्म के अंदर मेटफॉर्मिन कहाँ फिट होती है, बताइए पैथोफिजियोलॉजी तो में। रिसर्च कहती है, मैं क्या, मेटफॉर्मिन फिट होती है रिसर्च में। सर अब मैं देखें, तो हम प्रेग्नेंट खवातीन को प्री प्रेगनेंसी भी देते हैं, सर मैं उनको आपसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मेटफॉर्मिन देते हैं। मैंने बताया कि पीसीओएस के 3 मैकेनिज्म है। एक क्या है, हाइपर इंसुलिनीमिया, नंबर 1। नंबर जी 2, अंडरस्टूड दैट। सुन ले, लो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स व्हिच कम जी फ्रॉम द बिल्कुल। लिवर। और नंबर 3, decrease in the aromatase enzyme which converts the testosterone into the estrogen and progesterone। ये 3 मैकेनिज्म है। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर, लेकिन हमारी रिसर्च ये कहती इन है। तीनों मैकेनिज्म में क्लोमिफीन कहाँ फिट होती है और मेटफॉर्मिन कहाँ फिट होती है, मैं आपसे सीखने के लिए तैयार हूं, बताइए। तो ये हमारी रिसर्च जो है, जो हमारी तो मेडिकल पॉइंट ना, हमारा तो मेटाबॉलिक, लेकिन हमारी मेडिकल रिसर्च जो ये कहती है पीसीओएस में मेटफॉर्मिन वर्क्स। सर वो सर्च कहाँ छपी है, वो बताइए मुझे भी, मैं वो मैं पढ़ूंगा। आपको फिर भेज दूंगा रेफरेंस पे, ऐसा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन यू मे लुक इनटू इट आल्सो कि व्हाट्स द रोल ऑफ सर मेटफॉर्मिन हम तो पीसीओएस। सर हम क्योंकि तो आप कहते हैं मेटफॉर्मिन ना दो पेशेंट को, आप कहते हैं ओबेसिटी में उसको पहले को एक्सरसाइज करे जाके, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, लेकिन जिसको पीसीओएस है हमें मेटफॉर्मिन लिखनी पड़ती है कि सर हमारी रिसर्च के। मैंने पार्शियली एग्री किया आपसे कि उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, बट एट द लिवर ओनली, क्योंकि मेटफॉर्मिन सिर्फ लिवर पे काम करती है, एडिपोज टिश्यू और मसल पे काम नहीं करती, जबकि 90% ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस इज एट द लेवल ऑफ द एडिपोज टिश्यूज एंड मसल्स। आप लिवर को एक चीज पे तो सेंसिटिविटी बेहतर कर लेंगे, बाकी 2 पे कैसी होगी। सर मैं तो तो पीसीओएस की बात एक्सरसाइज कर के रहा हूँ साथ। सर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पीसीओएस, बाकी आपका सब ठीक है बिल्कुल। मेटफॉर्मिन रोल इन पीसीओएस, दैट इज ऑल। जी जी ठीक है, वो सेंसिटिविटी बढ़ा देगी, आई पार्शियली एग्री टू यू। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यही है कि कई पेशेंट मेरे मेटफॉर्मिन के ऊपर, जो कि इनको पीसीओएस था, इनफर्टिलिटी थी, दे गॉट प्रेग्नेंट डिस्पाइट ओबेसिटी। अच्छा चलें ठीक, ऐसे ही हो आप तो आप इस पे देख लीजिएगा। आप इस सर्च को पब्लिश करें सर, लोगों को भी फायदा हो। सर मैं ले आता हूँ, आर्टिकल निकालना तो मुश्किल काम नहीं होता, 1 मिनट ये में निकाल। आर्टिकल नहीं, अपनी पर्सनल सर्च, आप बताएं कितने लोग तो आप। हमारे तो इतना, हमारे पास 3-4 पेशेंट होते हैं, उन पे क्या रिसर्च करें, जो जिनको प्रेग्नेंट यार होते जो हैं भी उस। है आप उनका बनाए, डाटा बनाए। मैंने जिन लोगों में डायबिटीज रिवर्स की है, मेरे पास पूरा डाटाबेस है, और मैंने 50 से 60 लोग हैं जिनको डायबिटीज रिवर्सल कर दी है। इसी तरह वो तो सईद यही साहब कहते के हैं पास सर। भी है, मियां साहब के पास भी है, और आई हम इसको एब्सोल्युटली पब्लिश एग्री विद करने इट। जा रहे हैं बड़ी जल्दी। आई एग्री विद इट के जी यू कैन रिवर्स डायबिटीज, तो लेटेस्ट रिसर्च तो यही कहती है एक्सरसाइज विल रिवर्स। हाँ जी ठीक हो फुली गया, एग्री विद आप दैट। आप जो कुछ फरमा रहे हैं ठीक फरमा रहे हैं, थैंक यू। राइट सर, थैंक यू। बेटों को भी पकाना सिखाएं, जी बेटों को भी पकाना सिखाएं। जी बिल्कुल ठीक है जो। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। खुदा हाफिज। ओके। तो वो फरमा रहे हैं कि जी आपने पिछली दफा कहा था कि खवातीन को पकाना सिखाएं, हाँ तो आप बेटों को भी पकाना सिखाएं। तो खाना ही पकाएंगे फिर काम नहीं करते बाहर के। फिर सर किस तरह बचेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो। सर उन्होंने सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਸੀਆਂ ਤੇ 버ਗਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ सर बना के हमारे, दिखाओ। सॉरी टू इंटरप्ट अगेन सर, मेरे वाले साहब को खाना पकाना आता था अच्छी बात है सर, 1950s अच्छी में, when he went बात to है, England, he मल्टीटास्किंग would, करवाएं, अच्छी बात। हाँ मेरे वालिद साहब जो इंग्लैंड में अपनी गोरियों को खाना खिलाते होते थे, गोरियों को गाँव खिलाते में थे रहते ना थे जी, और सर, घर पे ही कालियां पकाते में तो खवाण कदी। तो सर आजकल के दौर की प्रॉब्लम है सर। हाँ जी, ਗੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸਰ, ਗੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, हाँ तो ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿस्तानी कर ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। तो सर तो ਇੱਥੇ क्यों नहीं कर सकते। सर कर सकते, थैंक यू करिए सर, जरूर थैंक यू करिए। वेरी मच, यू आर शुक्रिया। वेलकम।